Hello everyone, welcome back to Code with Clarity. This is series 1 Core Java Deep Dive and this is our first lesson. In this lesson we are going to understand the foundation of Java ताकि आगे के सारे टॉपिक्स आपको इजीली समझ आ सके. आज हम मेनली 3 चीजें कवर करेंगे. फर्स्ट विल बी व्हाट इज जावा, सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, third is platform independence and other basic characteristics of Java. So let's start with the basics. So first question, what is Java? See, Java is a high level object oriented programming language. जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. हाई लेवल का मतलब है जावा ह्यूमन रीडेबल होती है, यानी हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करके प्रोग्रामिंग करते हैं. जावा का यूज हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स और एंटरप्राइज लेवल सिस्टम्स बनाने के लिए करते हैं. जावा का मेन फोकस है राइट क्लीन कोड, रीयूजेबल कोड एंड सिक्योर एप्लीकेशन. ओके जावा के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन फीचर्स की वजह से जावा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए बहुत रिलायबल लैंग्वेज बन जाती है. आगे के लेसन्स में हम इन सब पॉइंट्स इंडिविजुअली डीप डाइव करके समझेंगे. So there are some important Java characteristics that are Java is a high level, object oriented, platform independent, secure and robust language. So one by one we will see all these features. Object oriented programming. अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप्स. ओप्स एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है जिसमें हम रियल वर्ल्ड चीजों को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए कार, स्टूडेंट, मोबाइल, बैंक, ये सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं. जावा में हम इन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कोड लिखते हैं, जिससे कोड ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, रीयूजेबल और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है. आगे के लेसन्स में हम ओप्स के कॉन्सेप्ट्स जैसे एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म डिटेल में देखेंगे. So I have given some example of object. Car is object, person is object, animal is object and bank is object, and every object has data and behavior. Okay, so what is data, what is behavior? If we can take the example of car, तो कार का एक मॉडल होता है, कार का कुछ मतलब नाम होता है, वो कौन सी कंपनी का कार है, उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ डेटा रहता है. ओके, बिहेवियर क्या है कि कार मैनुअल है या ऑटो कार है, कार कुछ तो बिहेव करती है. लाइक सो इन दैट वे every object has a data and behavior. Like if we can take the example of a person, person has a name, person has an address, person has some his identity or it's related to data. Okay, और अगर behavior का लिए जाए तो person कैसे behave करता है, person is crying or person is running or person is eating, whatever the behavior person is doing it comes under that behavior. Okay, so we will see. and ये data and behavior आगे जाके कोड में क्या रहता है, method. Data is what? Data is called as a field in a code structure. Okay, like person has a name, that we can take the name of the person as a field, and what we can do with that name, like we can take the address of that person by his name, that we are performing some operation on that data, that's called as a behavior, and the operation we can perform with the help of method. Okay, so that also you can see I have mentioned here object, class, method. Every object has a class, every object has a method. We will see one by one. Okay, so don't worry about anything. If you are not understanding anything,
You just remember what is object-oriented programming. Like Java is object-oriented programming. You will see everything clearly and deep dive. Okay. Java is platform independent. अब बात करते हैं जावा की एक स्पेशल फीचर की, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जावा का कोड एक बार लिखो और उसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन करो। जावा कोड डायरेक्टली मशीन पर रन नहीं होता, पहले जावा कोड कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। ओके, बाइट कोड, और फिर ये बाइट कोड जेवीएम के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। जेवीएम हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग होता है, इसलिए जावा का सेम कोड विंडोज, लिनक्स या मैक सब पर रन कर सकते हैं। इसी वजह से जावा को कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। सो आपको बाइट कोड या फिर जेवीएम कुछ अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, लेकिन बाइट कोड क्या है, जेवीएम क्या है, हम सब डीपली देखेंगे। ओके, सो जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन। ओके, so we will see the deeply architecture of a JVM. Okay, how JVM works, how Java bytecode converts, everything we will see in clear way. Okay. जावा, अभी हम जावा के इतिहास को समझते हैं। तो सन माइक्रोसिस्टम्स में जावा को 1991 में क्रिएट किया गया है। So Java was created in 1991 at Sun Microsystems, and this language is designed by James Gosling. The photo I have given, father of Java, James Gosling. So initially इस project को oak नाम दिया था. It was named after the oak tree outside James Gosling's office. ये story मैंने मेरे teachers से भी सुनी है कि उनके ऑफिस के पीछे एक पेड़ था जिसका नाम ओक ट्री था। सो उसकी वजह से उन्होंने इस लैंग्वेज को ओक नाम दिया था, बट इट वाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो इन्होंने लेटर टीम ने इसको चेंज किया एंड इट्स रीनेम टू जावा, एंड जावा नेम इज इंस्पायर्ड बाय जावा कॉफी which is the symbol of energy plus productivity. And then officially Java released हुआ in 1995. I have given the all in pictorial form also, but you can remember it easily. And so Java started becoming popular because it was simple, secure, and platform independent. So this is the history of Java. अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जावा का यूज कहाँ होता है। जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में एक्सटेंसिवली यूज होती है। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्स का फाउंडेशन जावा पर बेस्ड है, इसलिए अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, जावा एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, वेब एप्लीकेशन। जावा का यूज लार्ज स्केल वेबसाइट्स और एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस में होता है, जहां परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन तीसरा है एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी और बिग ऑर्गेनाइजेशन जावा बेस्ड सिस्टम्स यूज करती है, बिकॉज जावा स्टेबल और स्केलेबल होती है। जावा का यूज गेम्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में भी होता है। इस चैनल पर आप देखेंगे कि मैं ज्यादा पिक्चोरियल और विजुअल वे में पढ़ाती हूँ। रीजन सिंपल है, ह्यूमन माइंड टेक्स्ट से ज्यादा इमेजेस को फास्ट समझता और याद रखता है, इसलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बल्कि इमेजेस, डायग्राम्स और एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगी, ताकि आप जावा को रट्टा नहीं, रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ सीख पाओ। अगर आपको लगता है कि विजुअल्स के साथ पढ़ना इजी होता है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। कोड विद क्लैरिटी।
लेट्स रैप अप आवर सेशन। सो आज के लेसन में हमने सीखा व्हाट इज जावा, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिस, देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ जावा। ये लेसन जावा का फाउंडेशन है और आगे के सारे टॉपिक्स इसी बेस पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम जेवीएम, जेआरई और जेडीके को क्लियरली समझेंगे डायग्राम्स और एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कोड विद क्लैरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।